ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز نیشنل ٹیلی ویژن چینل. عرفان فاضل کے ساتھ آپ سب کا خیر مقدم ہے. استقبال ہے پروگرام سلام جے کے میں. جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گلستان نیوز میں ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک مختلف پروگرامز پہنچانے اور ساتھ ساتھ ہماری نیوز آپ تک پہنچتی ہے جس کا اپڈیٹ ہمیں بھرپور ملتا رہتا ہے. جہاں تک اس پروگرام کا تعلق ہے، اس پروگرام کی شروعات آلریڈی پہلے ہو چکی ہے جو کہ مارننگ شو کے حوالے سے ہے، جس میں ہم خاص خبروں پر ہماری جو بریکنگ جو رہتی ہے یا پھر اسپیشل لیٹسٹ اپڈیٹس جو رہتے ہیں دن بھر کے حالات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کرتے ہیں اور خاص طور آپ تک پہنچاتے ہیں. فی الحال آج کے اس پروگرام کا جو تعلق ہے یہ بھی ایک مارننگ شو ہے. ہماری کوشش رہے گی کہ کچھ خاص خبریں آپ تک پہنچائیں اور تھوڑا سا اس پہ تفصیل بھی ہو. آج کے اس پروگرام کو میرا ساتھ دینے کے لیے جی ہاں ہمارے چینل کے ہوسٹ خالد منتظر موجود ہیں. ان کا میں ویلکم کرتا ہوں. شکریہ عرفان. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر نیوز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، آپ تک خبریں پہنچاتے رہتے ہیں. فی الحال مارننگ شو میں ہمارے اس ٹرانسمیشن میں آپ کا ویلکم ہے. تو جہاں تک اس پروگرام کا تعلق ہے، شروعاتی طور پر جیسے دن کی شروعات کچھ اچھے کام سے ہی ہونی چاہیے، تو یہاں پر میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث ہم آپ تک پہنچائیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ اسے غور سے سنیں گے اور عمل بھی کریں گے. پہلے حدیث دیکھتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. ایک صحت و تندرستی، دو فرصت کے اوقات. صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الرقاق حدیث نمبر 6412. ویلکم بیک ویورز. ہمیں امید ہے کہ آپ نے حدیث غور سے سنا ہوگا. اب خبروں پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں. وادی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جو نامسائل حالات تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کافی زیادہ ٹرننگ تھا اور بوائلنگ تھا، اور مکمل 136 دن ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو جوائنٹ ریزسٹنس کی جو کال تھی خاص طور پہ حریت کی، تو اس پر لوگوں نے ان کو فالو کیا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ان کا کیلنڈر موصول ہوا تو کہیں ریلیکسیشن تھی تو کہیں پر پروٹیسٹ تھا اور کہیں نہ کہیں جہاں بند کے حوالے سے خبر تھی. فی الحال خالد آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کشمیر شٹس اگین، جیسے کہ ابھی 2 دن ریلیکسیشن تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کچھ الگ سا ہی چہل پہل، بالکل رونق بحال ہوئی تھی. بالکل. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے عرفان، پہلے تو میں اپنے ناظرین کو سلام، میری طرف سے سلام ان کو پہنچے. تو جیسے کہ آپ نے ابھی بولا کہ جو یہ کیلنڈر ہے جس پہ عمل کر رہے ہیں لوگ، جو برہان وانی کی ہلاکت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں وادی میں، تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید زندگی معمول کی پٹری پہ نہیں لوٹ پائے گی. اور چاروں اور جو کاروباری ادارے تھے، جو تعلیمی نظام تھا، بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا تھا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ سڑکوں پہ جو ٹریفک کی آمد رفت تھی وہ بھی مخدوش ہو کے رہ گئی تھی. تو حریت لیڈران کی جانب سے جو گزشتہ دنوں 2 دن کی ڈیل کی کال دی گئی تھی، تو اس میں الگ ہی سما دیکھا گیا. اور وہ ڈیل بھی اس وقت آئی کہ جب اس احتجاجی کیلنڈر میں کمی دیکھی گئی تھی. اس سے پہلے بھی جب ہم دیکھتے ہیں باریک بینی سے، تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اب لوگ سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. جو ریڑھی والے تھے، جو چھاپڑی فروش تھے، جو روڈ وینڈرز تھے، انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا تھا کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے تھے. تو زندگی بالکل مخدوش ہو کے رہ گئی تھی اور زندگی پوری مفلوج ہو کے رہ گئی تھی. تو 2 دن کی ڈیل کے بعد ایسا لگا کہ جیسے زندگی کی رونق پھر سے بحال ہوئی اور سبھی کاروباری سرگرمیوں کے علاوہ دکانیں بھی کھلی. جو اسکول بند پڑے تھے ان میں بھی جو خصوصاً جو اگر ہم بات کریں ونٹرز کے حوالے سے، جو ونٹر کے حوالے سے جو گیئرز رہتے ہیں، جیسے کپڑے کے حوالے سے ملبوسات، بالکل نا مختلف چیزوں کی. جیسے دیکھو عرفان بھائی، میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جب ونٹرز کا سیزن یہاں پہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت آپ خالی کپڑوں کی خریداری نہیں کرتے، مختلف چیزوں کی خریداری کرنی پڑتی ہے. جیسے کشمیر میں ایک روایت بنی ہے کہ ہم راشن کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ اسٹور کر کے رکھتے ہیں. اگر حوالے سے بات کریں تو گرم کپڑے کا جو بالکل، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ونٹرز میں ہمیں کارآمد آتی ہے، جو ہمیں درکار آتی ہے، ان کو ہم اسٹور کر کے رکھتے ہیں. تو 2 دنوں میں ایسا لگا کہ زندگی کی جو معمول کی جو زندگی ہے وہ پٹری پہ لوٹ گئی. لیکن کل پھر سے ہڑتال کی کال تھی، کل کوئی ڈیل نہیں تھی. تو کل کی جو ڈیل، کل کا جو صورتحال تھا، اس میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملا کہ پھر سے زندگی اسی پٹری پہ لوٹائی نہیں، کہ ہڑتال کی پٹری پہ، معمول کی پٹری سے نیچے اتر کر بس اسی ڈگر پہ چلنے لگی. اور کل بھی جب ہم نے دیکھا کہ سبھی کاروباری ادارے جو تھے وہ بالکل بند پڑے تھے. جو سکولز تھے، جو وہاں پہ 2 دن سے اتوار کے باوجود بھی
स्कूलों में दरस व तदरीस का निज़ाम शुरू हुआ था, लेकिन कल वही सूरत हाल रही कि कल सड़कों पर ट्रैफिक की आमद रफ्त भी काफ़ी मुतासिर रही, और उसके साथ साथ जो कारोबारी इदारे थे, माना कि श्रीनगर इलाके में या बाकी अजला में कुछ रोड वेंडर्स या जो रेडी वाले थे उनने काम शुरू किया था, लेकिन जो बड़े बड़े कारोबारी इदारे हैं, जो दुकानें हैं, वो बंद थी। और उसके साथ साथ हम जो तालीमी जो निज़ाम है वो कल भी बिल्कुल मफलूज रहा। कहीं पे भी स्कूलों में वो दरस व तदरीस का निज़ाम बहाल नहीं हो पाया, और उसके साथ साथ सड़कों पे जो ट्रैफिक की आमद रफ्त भी थी वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर रही। माना कि मेन टाउन श्रीनगर के पाइन और ऊपरी इलाकों में अगरचे सड़कों पे निजी गाड़ियों को हमने चलते देखा, लेकिन जो मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ थी वो कल भी बिल्कुल बंद ही पड़ी। नाज़रीन, एक और बड़ी मतलब मैं कहूँगा कि सदमे वाली ख़बर है, जहाँ तक कल हमने भी देखा और आपने भी टेलीविज़न के थ्रू देखा होगा, न्यूज़ के थ्रू देखा होगा, एक डिवास्टेटिंग फायर वादी कश्मीर में डलगेट के इलाके में मल्टींग के, जहाँ पर जिसे जो कि खालपोरा का इलाका है, वहाँ पर ख़तरनाक फायर देखा गया और उसमें एक इंसान की मौत भी हो गई और ख़ासतौर पे 28 मकान जो है वो नजर आतिश हो गए हैं। डिवास्टेटिंग फ्लड, खालिद, इस पर मतलब आप देखिए कंटिन्यूसली, मतलब ख़ासतौर पे जब सर्दियों का मौसम आता है तो कहीं ना कहीं ये स्पार्क देखने को ज़्यादा मिलता है। देखिए इरफान, क्या होता है एक्चुअली, पहले हमें देखना है कि हम जब देखते हैं तो रोज़ यहाँ से खबर जाती है, हम अपनी चैनल से नाज़रीन तक पल पल की खबर के साथ साथ हम ये खबर भी पहुँचाते हैं कि कहीं एक महीने से जो है, जो ये आगजनी के वाक़यात हैं, जो ये आग के वाक़यात है, ज़्यादा रोनुमा होते हैं। हर दिन हर अखबार को देखिए आप, हर चैनल को देखिए आप, वहाँ या हम अपनी चैनल से हर रोज़ आगजनी के वाक़यात की खबर देते हैं, या आग के वाक़यात की खबर देते हैं, दिलदोज़ खबर देते हैं। मामला ये है कि सरमाई मौसम शुरू हुआ है, तो सूखा पड़ा हुआ इलाके में। वो सूखा नहीं कि जिससे फसलें ख़राब हो जाए, बल्कि काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हुई है। जब बारिशें कम होती हैं तो कुछ ऐसा माहौल बनता है, बर्फबारी का मौसम था जी, बर्फबारी नहीं हुई, 2-3 महीने से बारिशें भी नहीं हुई, तो इसमें क्या होता है, ड्राइनेस होती है। और आजकल के सीजन में क्या होता है, कश्मीर में यहाँ पे कोयला बना के रखते हैं। एग्जैक्टली, मैं ये आपको बोलने वाला था कि लोग ज्यादा मैक्सिमम हीटिंग अरेंजमेंट्स, बिल्कुल हीटिंग अरेंजमेंट्स के साथ ज्यादा एफिलिएशन होती है लोगों की, ज्यादा वास्ता होता है। इससे पहले जब गर्मियों का मौसम यहाँ पे था, उस वक्त हम ब्लोवर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, उस वक्त हीटर कर ही नहीं सकते। जैसे अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है तो उस वक्त हम ये चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते। आज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनसे क्या होता है, जब आप किसी चीज को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही हो रहा है आजकल। जो कल ये वाकया सामने आया, जो आग का ये वाकया, उसमें बिल्कुल बड़ा खौफनाक था, और कम से कम घंटों आग पे काबू पाने वाले जो अमले थे और जो मुकामी लोग थे, उनको घंटों का टाइम लगा आग पे काबू पाने। लोकल्स ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, उनको हम जितने भी लोकल्स वहां पे आग को बुझाने में अपना रोल निभा रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, तो उनको हम गुलिस्तान चैनल की तरफ से सलाम पेश करते हैं कि इन हालात के बावजूद वो घर से निकले। और इसमें क्या हुआ है कि अभी तक जो हमारे पास इतलात है, इस आग के वाक़े में 28 रिहायशी कुंबे, 28 एक को तो की तो मौत भी हो गई है, बिल्कुल जो है 28 रिहायशी कुंबे, और इन 28 मकानात में तकरीबन 70 फैमिलीज रहती थी। इस आग के इस वाक़यात में जो डलगेट के खालपुरा इलाके में कल आग नमूदार हुई, उसमें 28 मकान जले हैं, खाकस्तर हुए हैं, और मकानों में जो भी साजो सामान था, ज़िंदगी की ज़रूरियात जो होती है, क्योंकि घर बनाने में टाइम लगता है, वो सभी आग की नज़र हुई और आग के ढेर में तब्दीली हुई है। और इन 28 मकानों में 70 के करीब यानी कि 70 कुंबे रहाइश पजीर थे, और जो आग की वजह से अब खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हुए हैं। और इस आग के इस वाक़े में एक जानी नुकसान भी हुआ है। ये 70 साल एक बुजुर्ग शख्स थे जो त्राल के रहने वाले थे, जिनका नाम मोहम्मद रमज़ान बताया जाता है, और ये अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आए थे, रुके थे, लेकिन अस्थमा के मरीज थे। जब वहाँ पे आग लगी तो आग लगने से पहले जाहिर सी बात है धुआं आता है, तो धुएं की वजह से इनको सफोकेशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी जो है वो डेथ हुई। और शाम को देर गई, जो हमें सोर्स से इत्तला मिली है कि इसकी जो है वो निशानदी की गई है, शिनाख्त की गई है, और ये त्राल का बताया जाता है, और इनका नाम मोहम्मद रमज़ान बताया जाता है। तो हुकूमत ने भी अपनी तरफ से इनके लिए इंतजाम किए हैं। अभी तक इन आग मुतासिर अफराद में जो टेंट हैं वो बांटे हैं इंतजामिया ने, और यानी कहीं ना कहीं राहत की सांस जो बिल्कुल है, क्योंकि आज सर्दी का मौसम है, इसमें तो हुकूमत को आगे आना चाहिए। बिल्कुल ये बेघर हुए हैं। कल तक आपको भी मालूम होगा, जो अभी आपने देखा कि एक वो डिवास्टेटिंग फायर ऑलरेडी जहां पर पूरी बस्ती खत्म हो गई, बिल्कुल वो बिल्कुल कश्तवाड़ एरिया में जो हुआ था, बिल्कुल वहां पर भी आपने देखा ऐसा ही हुआ था। और ऊपर से इरफान ये मैं बताता चलूं कि आजकल जो मौसम है
ये बाहर टेंट में रहने का भी नहीं है। हुकूमत को चाहे कि कहीं पे इनको अडॉप्ट करें, बिल्कुल किसी सरकारी इमारत में इनको तब तक रखे जब तक इनका इंतजाम होता है, क्योंकि आज का वो मौसम है ही नहीं जो आपको अलाउ करे कि आप टेंट में जिंदगी गुजारो। आपको बताते चले कि फिलहाल जहाँ तक मौसम के हवाले से और खास तौर पे जो मौसम का अपडेट है वो आप तक पहुंचता है हमारे न्यूज़ बुलेटिन के थ्रू, जो कि शाम को 6 बजे टेलीकास्ट होता है। फिलहाल इस वक्त हम मौसम के हवाले से बात करेंगे। कश्मीर की जो एयर कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्टेड है, 36 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हुई है तकरीबन 5 दिनों से, और अगर देखा जाए तो डेंस फॉग है। और इसी के हवाले से आपने देखा कि कल जैसे कि आपने देखा, हमने भी सुना और आपने भी सुना होगा कि वादी कश्मीर में जो सोनमर्ग जैसी खूबसूरत जगह है वहां पर पहली बर्फबारी, मौसम की बर्फबारी हुई है सुनने को मिला। और खास तौर पे हमारे लिए खुशी की बात है, पूरे दुनिया के लिए खुशी की बात है, क्योंकि सर्दी के हवाले से अगर बर्फ के हवाले से अगर हम बात करें तो वादी कश्मीर की अलग ही बात है। बिल्कुल, देखिए वादी कश्मीर का गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का, ये जन्नत बेनज़ीर हर मौसम में बेनज़ीर है। हर मौसम में इसका अलग ही अपना रूप होता है, और यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से सयाह यहाँ के कोहसारों, यहाँ की वादियों, यहाँ के झरनों, यहाँ के पहाड़ों और आबशारों को देखने के लिए आते हैं। तो इस मौसम की जो पहली बर्फबारी थी, ये सभी जो हमारी चैनल इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए, उनको हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीत रही है जब भी बर्फबारी होती है तो मुबारकबाद दी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो फ़िज़ाई राबिता हमारा मुनक़ता हुआ था 4 दिनों से, और जिसमें जैसे आपने अभी फरमाया कि 36 के करीब जो परवाज़ें थी मुख्तलिफ कंपनियों की, उनको मनसूख कर दिया गया था, क्योंकि काफ़ी धुंध थी और पोअर विजिबिलिटी की वजह से जो परवाज़ें थी वो लैंड नहीं कर पाती थी, उतर नहीं पाती थी। और सर्दी की जो शिद्दत की लहर थी, और लद्दाख में इरफान जैसे कि हम अपने महकमे मौसमियात का जो यहाँ पे जो इतलातें मौसूल हो रही है हमारे इस चैनल को, उसके मुताबिक -9 डिग्री भी रिकॉर्ड किया गया लद्दाख के एरिया में, -3 और -4 भी रिकॉर्ड किया गया कश्मीर में, और पहलगाम के एरिया में भी -4 -5। तो कहने का मतलब यह है कि सर्दी की जो शिद्दत थी वो बढ़ गई थी। और कहीं ना कहीं अगर बारिशें हो जाती है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस मौसम में, और आपने देखा हल्की बर्फबारी, बिल्कुल आपने देखा हल्की बर्फबारी जो हुई, जो बर्फबारी सोनमर्ग एरिया में हुई, जोजिला एरिया में हुई, उसका असर यहाँ पे पड़ा। आज सुबह जब आप मॉर्निंग शो के लिए आ रहे थे, तो वो फॉग जो खास तौर पे जो कोहरा लगता है, खास तौर पे गाड़ियों के हवाले से, जैसे मैं मॉर्निंग में निकला तो आज मैंने देखा कि शीशे वगैरह जो गाड़ियों, बिल्कुल, और फॉग भी नहीं थी। जब हम मॉर्निंग शो के लिए आ रहे थे तो रास्ते में जो हमें फॉग देखने को मिल रही थी कल परसों, वो आज नहीं थी। और ऐसा लग रहा है कि जहाँ सर्दी की लहर से हमें निजात मिलेगी किसी हद तक, और आज दर्जे हरारत में भी फर्क है। बिल्कुल जैसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं मौसम के हवाले से, और खास तौर पे डेंस फॉग के हवाले, जो वादी कश्मीर में अपडेट चल रहा है, तो इसके हवाले से हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके जो डायरेक्टर है सोनम लोटस, उन्होंने कुछ अपडेट दिया है। आइए वो देखते हैं, उसके बाद लौटते हैं इसी प्रोग्राम में, देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़। और नवंबर का महीना ऑलमोस्ट पूरा ड्राई रहा है, हर बारिश या बर्फ़ बिल्कुल नहीं हुआ है। इसका मेन कारण है कि अभी कोई भी यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम यानी हवा के कम दबाव नहीं बनने के कारण ये पूरा ड्राई स्पेल चल रहा है। और ये ड्राई स्पेल होने की वजह से दिन का तापमान या दर्जा हरारत जो है अभी ऑन एन एवरेज, अगर मैं श्रीनगर की बात करें तो 14 और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, जो कि नॉर्मल से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम है। अगर मिनिमम टेम्परेचर कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो श्रीनगर में आज सुबह जो है सबसे कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जो कि -2.7 यानी -2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए, जो कि सीजन का अभी तक का सबसे लोवेस्ट है। लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि और कोई वेट स्पेल होने का संभावना नहीं है, कोई पेशन गोइंग नहीं है, तो इस सिलसिले में अभी आने वाले दिनों में ये मिनिमम टेम्परेचर में और गिरावट आएगा, -3 -4 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकते हैं, जो कि दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में वैसे बहुत कम होता है, लेकिन होते हैं, ऐसे बात नहीं। पिछले 10 साल में की अगर बात करें तो ऐसा 2-3 बार हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं, तो आने वाले दिनों में -2 और -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो जहाँ तक ओवरऑल वेदर की बात करें तो दिन का मौसम जो है प्लेजेंट रहेगा, सुबह शाम ठंड रहेगा और नाइट को और ठंड रहेगा, और सुबह शाम विजिबिलिटी जो है पुअर रहेगा, क्योंकि अभी ठंड का मौसम अभी शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए जैसे कोयले जलाते हैं, तरह तरह के जैसे लकड़ी जलाते हैं, जिससे कि काफ़ी धुआं एटमॉस्फेयर में पंप होते हैं हमारे वातावरण में। वातावरण में काफ़ी ये पार्टिकुलेट्स एंड पोल्यूटेंट्स जो है फैल जाते हैं,
जो क्योंकि अभी मौसम भी तो काफ़ी ठीक है, वेदर स्टेबल है, एटमॉस्फेयर काफ़ी स्टेबल है, जिसके कारण हवा भी काफ़ी कूल एंड काम है। तो ये जो है, जो भी पोल्यूटेंट है, ये सारे हमारे वादी कश्मीर या इवन हमारे एटमॉस्फेयर में ही ये सस्पेंडेड रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये अभी जिसकी वजह से विजिबिलिटी पुअर रह जाता है। और क्योंकि अभी टेम्परेचर भी ठंड है, जो भी सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स है वो अभी आस्ता आस्ता जो है कंडेंस हो रहा है, जिसकी वजह से सुबह शाम टेम्परेचर कम होने की वजह से ये विजिबिलिटी पुअर रहने का इम्कान है। और जहाँ तक अगर मैं बर्फ या बारिश की अगर फोरकास्ट की बात करूं तो आने वाले एक हफ्ता 10 दिन तक कोई ऐसा फोरकास्ट नहीं है। मौसम अमूमन ड्राई रहेगा, लेकिन 20 और 21 के दरमियान हल्की फुल्की बारिश, लाइट स्नोफॉल जो है हायर रीचेस पे, पहाड़ी क्षेत्र में, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश पड़ सकता है। इससे अलावा कोई ज़्यादा बारिश या बर्फ होने का कोई संभावना नहीं है। मौसम अमूमन ड्राई खुश्क रहने का इम्कान है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके, और ख़ास तौर पे हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम को हम आप तक पहुंचाएं, रोज़ाना पहुंचाएं, और आप पसंद भी करें और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। फिलहाल हम बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के हवाले से। चीफ मिनिस्टर रिव्यूज़ डेवलपमेंट, जो कि आजकल का जो काम काज के हवाले से जो एफर्ट्स या फिर जो कोशिशें हो रही हैं या जो दौरे हो रहे हैं या जिस तरह से उनका आजकल नज़रिया है, वो आपने देखा कि जम्मू में ख़ास तौर पर अभी केबल कार के हवाले से या फिर जम्मू तवी के हवाले से प्लानिंग जितने भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो कल भी एक ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें काफ़ी पुलिस के अफसरान वगैरह शामिल रहे हैं, तो इसके हवाले से देखिए इरफान, जो ये मीटिंग हुई ये कल जम्मू सूबे में हुई और इसमें दो चीज़ों पे बात की रियासत के वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने। एक तो जो पुलिस के मुख्तलिफ अफसरान थे उनके साथ उन्हें तबादुला ख्याल किया, और उसके अलावा उन्होंने जो सूबा जम्मू के जो मुख्तलिफ अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने बात की। दो मुद्दों पे बात हुई। तो वज़ीर आला ने उनसे पहले तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से उन्होंने बड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी कि जितने भी तरक्याती काम होते हैं, जितने भी तामीर और तरक्की के काम होते हैं, उन पे वो खुद नज़र रखें। क्योंकि कई दिनों से जो सामने बातें आ रही है कि जो तरक्याती काम है उनमें सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है, और जो मुकर्रर वक्त हम देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि जब भी सरकार किसी प्रोजेक्ट की तामीर का काम हाथ में लेती है या संग बुनियाद रखती है, उस वक्त एक टाइम बाउंड दिया जाता है कि किस वक्त तक आप इस काम को मुकम्मल करेंगे। उसके ये फ़ायदे भी होते हैं कि जो फ़ायदा उस प्रोजेक्ट से आम लोगों को मिलना होता है तो उसके लिए भी एक वक्त मुकर्रर की हुई होती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अक्सर रिवायत रही है कश्मीर में कि जो प्रोजेक्ट का जो टाइम बाउंड होता है, जो मुकर्रर वक्त होता है, उस पर नहीं होता है। तो तरक्याती कमिश्नरों से महबूबा मुफ्ती जी जो है रियासत की जो वज़ीर आला है, उन्होंने कहा कि दो चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। एक तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जो ये तामीरी काम हो रहा है, इस पर आप खुद नज़र रखेंगे और जायज़ा लेंगे, जाएंगे स्पॉट पे जाएंगे, साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप खुद हालात का जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से काम हो रही है और काम पे सूरत लाएंगे, उसके लिए भी आप जिम्मेदार होंगे। और उसके साथ साथ किस ढंग से हो रहा है, जो प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है, जो बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट पहले बनाया जाता है किसी काम के लिए, उस पर भी अमल हो। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो उन्होंने पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की, तो पुलिस अफसरान क्योंकि हम देख रहे हैं कि वादी की बात करें या जम्मू की बात करें या पूरे अपने मुल्क की बात करें, हम देख रहे हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो कौम का मुस्तकबिल होता है, जो कौम के लिए एक अजीम सरमाया होता है, जो हमारे लिए कल मशले राह बन सकते हैं, हमारे लिए टॉर्च बियरर्स बन सकते हैं, और जिनके कांधों पे कौम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होती है, वो नशे की लत में पड़ जाते हैं, उनको नशे की लत लग जाती है, और जो ये नशे की लत है इससे फिर उनका निकलना महाल हो जाता है, और फिर एक नशीली अद्वियात का इस्तेमाल करने वाला नौजवान कौम का मियार नहीं हो सकता, कौम का मुस्तकबिल नहीं हो सकता। तो पुलिस अफसरान से नशीली अद्वियात के और चीज को रोकने बिल्कुल नशीली अद्वियात और नशीली मंशियात का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ शिकंजा कसने की हिदायत भी दी गई। चलिए अब हम बात करेंगे रियासत के ख़ास तौर पर एजुकेशन के हवाले से। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि जो वादी में नामसाइल हालात थे, तो इससे एक डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन सेक्टर को, और ख़ास तौर पे अभी जैसे आपने देखा कि सरकार का फैसला 50% रिलैक्सेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में 11th के हवाले से एक खबर आई है कि आफ्टर मास प्रमोशन क्लास 11 स्टूडेंट्स आस्क्ड टू अपीयर फर्स्ट टर्म यानी टर्म 1 एग्जाम ऑल्सो। और इसके साथ साथ कल जैसे आपने देखा कि हमारी जो न्यूज़ में एक खबर हमने जो शाया कि वो फीस रिलैक्सेशन के हवाले से, जिसमें एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वार साहब ने भी उस पर अपडेट किया था, तो इस पर आप क्या? देखिए इरफान, सबसे पहले फीस की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम लेते हैं जो यहाँ का तदरीसी दरस व तदरीस का निज़ाम है। जी, सभी जानते हैं
کہ درس و تدریس کا نظام وادی میں 136 دنوں سے بالکل مفلوج پڑا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہاں پہ گرمائی تعطیلات چل رہی تھی ہمارے اسکولوں میں، 16-17 دن کے قریب تقریباً یہی کچھ دن تھے۔ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ گرمائی تعطیلات، انہوں نے اعلان کیا تھا تو گرمائی تعطیلات چلی تو پھر یہ حالات خراب ہوئے، اور اس کے بعد ہم مان لیں اگر 4 مہینے ہوئے ہیں تو 4.5 مہینے کے قریب سکول بند پڑے ہیں، اور درس و تدریس کا نظام بالکل متاثر ہوا ہے۔ اور اس موجودہ حالات کے دوران سب سے زیادہ متاثر ہونے والا میری نظر سے جو شعبہ ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے، کیونکہ وہ بچے جن کے 4 مہینے 4.5 مہینے 5 مہینے ضائع ہوئے ہیں ان کو آپ یہ دے نہیں سکتے ہیں۔ اور اوپر سے اگر جو اب ماس پروموشن کا اعلان ہوا ہے اول جماعت سے لے کے 10ویں کے بغیر 11ویں جماعت تک ماس پروموشن کا اعلان کیا، لیکن کل ہی ایک اچھا قدم ہمیں جو سننے کو ملا، دیکھنے کو ملا کہ جو ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن ہے انہوں نے باضابطہ طور پہ ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جو بھی اسکول بند پڑے ہیں ان میں پھر سے درس و تدریس کے نظام کو بحال کیا جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک حکم نامہ بھی جاری کیا، اور وادی کے جو اسکول ہے چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو چاہے وہ سرکاری اسکول ہو تو ان میں 25 نومبر 2016 سے اب باضابطہ طور پہ کلاسز لیے جائیں گے۔ خالد ایک سوال میں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہوں گا، اس کا جواب چاہتا ہوں۔ جو جیسے آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں کافی زیادہ ڈمپ رہا جو کہ آگے نہیں بڑھ پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو کاروباری ادارے تھے یا پھر جو کام کرنے والے لوگ تھے، خاص طور پہ جن کے پاس کاروباری کام کاج کچھ نہیں تھا، نو ڈاؤٹ آپ نے دیکھا کچھ بچوں نے پرسوں یعنی ایجوکیشن کے فیس کے لیے خاص طور پہ پروٹیسٹ بھی کیا۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں جو سفر کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اینگل سے جو پرائیویٹ سکولز کی جو ڈیمانڈ ہے یا پھر اکیڈمیز کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں جی فیس کو کنٹینیو کرنا ہے، ہمیں ریزلٹ ہے نا تیار کرنا ہے، یا فیس یا میں کہوں گا کہ سیلریز پے کرنی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ڈیسیجن ہے؟ دیکھیے پہلے تو سکولوں کی بات کریں گے کہ درس و تدریس کا نظام بحال ہو، ماس پروموشن کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جو 11ویں جماعت کو ماس پروموشن دی گئی، لیکن اس کے بعد بھی ٹرم 1 کے ایگزام میں انہیں بیٹھنا ہوگا، حصہ لینا ہوگا، کیونکہ وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ کافی مقامات پہ جو رضاکارانہ طور پہ جو نوجوان تھے وہ خود بچوں کو تعلیم فراہم کرتے تھے، باقی رہی فیس ادا کرنے کے بعد تو کل ہی ہم نے جو فوٹیج دکھائی جو پروٹیسٹ چلا تھا وہ معصوم بچیاں پرنم آنکھوں سے، اب وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بول نہیں پا رہے تھے، بالکل وہ بول نہیں پا رہے تھے عرفان، اور مطلب انسان کی روح کانپ اٹھتی تھی جب اس معصوم بچی کے ہم الفاظ سنتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کے جو ابا ہے اس کے جو بابا ہے وہ بالکل 4 مہینے سے گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں، تو وہ کیسے فیس ادا کریں گے؟ تو ان معاملات کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ موٹی موٹی رقمیں اینٹ لیتے ہیں ایڈمیشن فیس کے نام پہ، باقی چیزوں کے نام پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹرانسپورٹ بیٹھا تھا ان کا، بالکل تو ہاں بالکل ہم کیسے پے کریں؟ تو لیکن جو یہ والدین ہیں انہوں نے حکومت سے گزارش کی، اور کل اس کے جو اثرات ہے جو وہ فریاد پہنچانا چاہتے تھے ارباب اقتدار کے ایوانوں تک، کل اس کے جو ثمرات تھے، کل اس کے جو نتائج تھے وہ سامنے آئے، اور پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کے جو ان کے جو پریزیڈنٹ ہے کشمیر کے، انہوں نے کہا، وار صاحب نے کہا کہ وہ ان افراد کے بچوں کی فیس معاف کریں گے جو بالکل جو یومیہ مزدور ہوں گے، جو دن مزدوری کرتے ہوں گے اور جو ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور اس کے علاوہ وہ افراد جنہوں نے کام کیا ہوگا، بالکل وہ ویریفیکیشن کریں گے، جنہوں نے کام کیا، جن میں سے سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے تو تنخواہیں لی، چاہے وہ ڈیوٹی پہ گئے یا نہ گئے وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے تنخواہیں لی، ان کے بچوں کا فیس معاف نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی شعبہ زندگی سے وابستہ افراد ہے جو کام کرتے تھے، جن کا ہڑتال کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا، وہ فیس دیں گے۔ ہم کہیں گے یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا ایک اچھا منہ ہے، اچھا قدم ہے، لیکن ان کو اس میں اور مزید دیکھنا ہوگا، کیونکہ اور بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ہڑتال کی وجہ سے یا نامساعد حالات کی وجہ سے کچھ نہیں کما پائے، ان کو ان پہ بھی ابھی فی الحال جدوجہد روٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں، بالکل بالکل کھانے کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور فیس ادا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے ساتھ ساتھ، کل جہاں تک آپ کو معلوم ہے کہ کرنسی کے حوالے سے جب اپڈیٹ آیا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ، جو خبر جڑی تھی کہ ایک دم سے یعنی انہوں نے جو نوٹس ہے وہ بند کر دیے، اس کے بعد انہوں نے نئی کرنسی جو ہے وہ لاگو کر دی، تو اسی کے حوالے سے کافی چرچے میں رہے بینکس، اور بینکس کے حوالے سے کل خبر آئی ہے کہ 4 گن مین لوٹ ₹13 لاکھ فرام جموں کشمیر بینک، جو کہ ڈسٹرکٹ بڈگام میں ہے، چراری شریف کے علاقے میں، جہاں پر 13 لاکھ روپے کے قریب جو ہے جو رقم ہے وہ چوری کی گئی ہے، اور یہ ملپورہ کا علاقہ ہے۔ بالکل دیکھیں عرفان، یہ واقعہ چراری شریف ڈسٹرکٹ بڈگام کے ملپورہ علاقے کا ہے۔ بڈگام کے ایک ضلع بڈگام جو ہمارا ہے اس میں چراری شریف، جہاں پہ شیخ نور الدین نورانی کی جو مشہور معروف زیارت ہے، جو یہاں کے ولی کامل گزرے ہیں، بالکل شیخ العالم نور الدین نورانی، تو اسی علاقے سے چراری شریف میں ان کی زیارت گاہ ہے،
मलपोरा एरिया पड़ता है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख है, उसमें दिन दहाड़े, दिन के उजाले में 4 अफराद बताया जाता है कि 4 अफराद बंदूक के लेके लेकिन निकाब पोश, उनका जो चेहरा था वो बंद था, वो बैंक में दाखिल हुए और उन्होंने जो भी बैंक में था, चाहे वो बैंक अमला था, चाहे वहाँ पे वो लोग थे जो नोटों की मनसूखी के हवाले से वहाँ पे बिल्कुल उनको यरगमाल बनाया, उनके मोबाइल फोन्स उन्होंने स्नैच के वो अपने कब्जे में ले लिए और फिर उन्होंने बैंक से, चाहे उसमें पुराने नोट भी शामिल है, नए नोट भी शामिल है, उन्होंने तकरीबन 13 लाख के करीब जो वहाँ पे रकम थी वो उड़ा ली, अपने साथ ले गए। तो उसके बाद जब लोगों ने पुलिस को मुत्तला किया तो पुलिस ने इस सिलसिले में वहाँ पे जो हालात का जायज़ा लिया और जितने भी वहाँ पे लोग यरगमाल बनाए हुए थे, जो ग्राहक थे, जो वहाँ पे अपने पैसों को तब्दील करने के लिए गए थे जी, उनका बयान कलमबंद किया और उसके बाद इन 4 अफराद की जो फुटेज भी आई है, इनकी तलाश बड़े पैमाने पे शुरू कर दी गई है। अब ये बताइए कि दिन दहाड़े इस तरह की जो सिचुएशंस हो रही है, आप मुझे बताइए कि आखिर क्या होगा, क्या रहेगा अब माशरे के साथ साथ ये सारी चीजें? देखिए, ऐसे जो वाक़यात है इन पे हम क्या कह सकते हैं? क्या बैंक्स को और सिक्योरिटी बढ़ाने का मतलब कहीं ना कहीं स्टेप लेना चाहिए? वो तो है, बैंक्स को चाहे कि जो बैंक मुंतज़मीन है, जो इंतज़ामिया है बैंक की, तो उनको चाहे कि वो सिक्योरिटी बढ़ा दें, तो सिक्योरिटी बढ़ाने के अलावा उनका कोई और चारा नहीं है। इरफान, एक और खबर मैं बता दूं आपको सिक्योरिटी के साथ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमने सुना था कि अब तो एटीएम को भी कैरी करके ही ले जाते हैं। नहीं, सिक्योरिटी बढ़ाने की बात है और जब ऐसे हालात है तो ऐसे वैसे वाक़यात होते ही रहते हैं। और एक और खबर सिक्योरिटी के हवाले से कि साउथ कश्मीर में मज़ीद CRPF की नफरी को तैनात किया गया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि मौजूदा हालात के दौरान साउथ कश्मीर इलाके में, चाहे कुलगाम, शोपियां, पुलवामा या अनंतनाग, वहाँ पे पुलिस एहलकारों की 40 के करीब जो सर्विस राइफलें हैं वो स्नैच की गई थी, वो उन्होंने उड़ा ली थी। तो जो बयान आया है कि अब CRPF की मजीद नफरी को वहीं पे तैनात किया गया है, 3 कंपनियों को साउथ कश्मीर भेजा दिया गया है और जो मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं इन पे पास रखा था हुकूमत ने, और हुकूमत का ये भी मानना है कि इन एक्टिविटीज़ को, इनसे निमटने के लिए वहाँ पे CRPF को तैनात किया गया है। तो ख्वातीन हज़रात, जहाँ तक हम इस प्रोग्राम के हवाले से बात करें, वक्त का तकाज़ा और वक्त के साथ साथ कुछ खबरें हमने आप तक पहुँचाई और आज हमें उम्मीद है कि ये थोड़ी सी गुफ्तगू आपने पसंद की होगी। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत थे। सुबह दुआ करते हैं कि आपका दिन खूबसूरत रहे, अच्छा रहे, सेहतमंद रहे और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि खुश रहिए, आबाद रहे और हमेशा हमारी चैनल देखते रहिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।